جیسے اگر ہم اپنے پڑوسی انڈیا میں کیس دیکھیں، انڈیا جو ہے وہ برکس فورم کے اندر آہستہ آہستہ جو ہے وہ اب ساؤتھ امریکہ ایز جو کانٹیننٹ ہے وہاں اور آسٹریلیا کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات بلڈ کر رہے ہیں۔ ان کی فارن پالیسی کیوں اچھی ہے؟ کیونکہ وہ سب کے ساتھ بنا کے رکھتے ہیں، اور ہم بھی اگر سب کے ساتھ بنا کے رکھیں گے ہماری بھی پالیسی اچھی ہے، ہم بھی سب کے ساتھ امن کے ساتھ رہیں گے، پیس کے ساتھ رہیں گے تو اچھا رہے گا سب کے۔ جی، انڈین گورنمنٹ آپ کے خیال میں اپنی عوام کا فائدہ دیکھتی ہے اور نیوٹرل رہتی ہے تاکہ ان کی جنتا کا، ان کی عوام کا فائدہ ہو؟ ہاں جی، بالکل ایسی ہے۔ ہمارے یہاں پہ کیس یہ ہے کہ پاکستان میں ہماری چونکہ گورنمنٹس ویک ہوتی ہیں، فورن منسٹرز کا ایک ڈیفرنٹ سٹائل ہوتا ہے، تو ہمارے یہاں پہ فورن پالیسی جو ہے وہ اس طرح سے ڈیولپ ہو نہیں پائی۔ عمران خان نے جو انڈیا کی فورن پالیسی کی تعریف کی ہے، اس پر کیا کہنا چاہیں گے آپ نے؟ انہوں نے کہا ہے کہ انڈیا بڑے سمجھداری سے چلتا ہے، ان کی فورن پالیسی بہت بہتر ہے پاکستان سے، اور پچھلے کئی ٹائم سے بڑی بہتر ہے ان کی۔ صحیح بات ہے، یہ تو صحیح کہہ رہا ہے بھائی، اس کا نہ کوئی مر رہا ہے یا کوئی دوسرا ہو رہا ہے، ہم نے امریکہ کے ساتھ امداد کر کے بھی پھر بھی ان لوگوں کا ہمارے اوپر اٹیک کرا ہے۔ ایس سی او کی میٹنگ اٹینڈ کرنے سے ایک دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے جو فورن منسٹر ہیں یا ان کی جو فورن پالیسی ہے ان کی طرف سے آفیشیل ایک سٹیٹمنٹ دی گئی تھی کینیڈا کے لیے، تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ جو کینیڈا اور انڈیا کی فورن پالیسی ہے اس کے اندر نیوٹن کا جو لا ہے وہ اس کے اوپر اپلائی ہوگا، نیوٹن لا آف پالیٹکس اپلائی ہو جائے گا۔ انڈیا کہتا ہے کشمیر میں کوئی زیادتی نہیں ہو رہی، آپ کیا کہیں؟ وہ غلط بات ہے، وہ جھوٹ ہے، لیکن یہ بات سچ نہیں ہے۔ سچ یہی ہے کہ وہ کشمیریوں کے ساتھ بہت زیادہ ظلم کرتے ہیں۔ یہ بات غلط ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے وہاں پہ امن بنایا ہوا ہے یا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، یہ بات بالکل غلط ہے۔ فورن پالیسی کسی بھی کنٹری، کسی بھی اسٹیٹ کے لیے کتنی زیادہ امپورٹنٹ اور سگنیفیکنٹ؟ دیکھیں، جہاں تک معاملہ فورن پالیسی کا ہے، فورن پالیسی 21st سینچری میں ایک بیسک ٹول ہے دنیا سے اپنے آپ کو کنیکٹ کرنے کا۔ اگر ہم فورن پالیسی کے معاملات دیکھیں تو جو پاکستان کی فورن پالیسی ہے، ہم دیکھیں ہماری جو فورن پالیسی ہے نا، بیسیکلی ہم وہ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک تو اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز اور پولیٹیشینز مل کر ایک آپس میں اس پہ لڑتے رہتے ہیں، اور وہ فورن پالیسی کبھی وہ ڈیولپ ہو ہی نہیں پاتی۔ عمران خان نے اپنے اسپیچ میں انڈین فورن پالیسی کو بڑا اپریشیٹ کیا۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے نیوٹرل رہ کے اپنے ملک میں امن قائم کیا۔ اگر پاکستان نیوٹرل رہتی پچھلی حکومتیں تو آج پاکستان میں امن ہوتا، آپ اس پر کیا کہیں؟ اس نے ایک ایگزامپل سٹیٹ کی ہے یہاں پہ، اور میرا نہیں خیال یہاں پہ ملک دشمنی کو دیکھنا چاہیے، یہاں پہ ایک ایگزامپل کو دیکھنا چاہیے۔ اگر انہوں نے ایک ایگزامپل سیٹ کی ہے اچھے سے تو وائی ناٹ کہ پھر آپ ان کی ایگزامپل دیں۔ تو میرا یہ موقف ہے کہ اگر انہوں نے سیٹ کی ہے ایگزامپل تو عمران خان کو بھی چاہیے کہ وہ جو انہوں نے جس طرح سے سیٹ کی ہے اس کے اوپر تھوڑا سا کام کریں۔ پچھلی حکومتوں نے جو کام خراب کیے ہیں، آئی تھنک کہ وہ ابھی ٹائم لگے گا ان چیزوں کو ریورٹ بیک کرتے ہوئے۔ دیکھیں جی، جب ریاستیں ایک ٹریٹی آف ویسٹفالیہ ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اس میں ایک معاہدہ ایسا ہوا تھا کہ اس میں جو ریاست تھی نا اس کی ایمرجنس کو بہت زیادہ امپورٹنس دی گئی تھی۔ اس سے پہلے نیشن سٹیٹ کا کانسیپٹ نہیں تھا۔ جب نیشن سٹیٹ کا کانسیپٹ نہیں تھا تو لوگ گھوڑے سے مطلب گھوڑے والا جو سسٹم تھا برٹش ایرا سے 1600 سے پہلے آپ چلے جائیں تو بہت سی، آپ اس بات سے بھی آپ کو بڑا شوق ہوں گی آپ کہ جب انڈسٹریل ریولیوشن آیا تو اس وقت برٹش نے اسی بنا پہ امپیریلزم اور جو کلونیلزم ہے اس کی بنا پہ دنیا کا 38% آکوپائی کر لیا تھا۔ تو بیسیکلی فورن پالیسی ڈیولپ کرنے کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ ہمارا جو سیٹ اپ ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر جو فورن پالیسی کی جو کمیٹی ہے وہاں پہ ایسی ایک اسٹرانگ کمیٹی بنائی جائے جس میں تمام انسٹیٹیوشن، اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز بھی اور پولیٹیشینز بھی بیٹھیں اور بیٹھ کے ان کیمرہ ڈیسائیڈ کریں کہ فورن پالیسی کس طرف شفٹ اس کا جانا چاہیے۔ تو کیونکہ اب 21st سینچری میں گلوبل ورلڈ اور گلوبلائزیشن کی طرف ہم موو کر رہے ہیں تو فورن پالیسی از ویری امپورٹنٹ ان دس کیس کہ آپ جو فورن پالیسی ہے وہ اپنی ایسی بنائیں جو وچ از فلیکسیبل ٹورڈز آل اینڈس۔ ان کی فورن پالیسی کیوں اچھی ہے؟ کیونکہ وہ سب کے ساتھ بنا کے رکھتے ہیں، اور ہم بھی اگر سب کے ساتھ بنا کے رکھیں گے ہماری بھی پالیسی اچھی ہے، ہم بھی سب کے ساتھ امن کے ساتھ رہیں گے، پیس کے ساتھ رہیں گے تو اچھا رہے گا سب کے۔ جی بالکل، اسی طرح یہاں انڈیا سب کے ساتھ بنا کے رکھتی ہے تو وہ بالکل سب کے ساتھ جو ہے نا اچھے تعلقات بھی بنا رہی ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو ہے نا سب کے ساتھ بنا کے رکھیں گے تو تبھی ہمارا جو ہے نا ایک امپیکٹ اچھا بھی پڑے گا اپنی کنٹری کے اوپر بھی اور فورن کنٹریز کے اوپر بھی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نا اپنی کنٹری کو جو ہے نا سب کے ساتھ بنا کے رکھیں گے تبھی۔ تو اس نے ڈیمارکیشن اس طرح سے کروائی تھی کہ آج بھی آپ نقشہ اٹھا کے دیکھ لیں تو اس کے اندر اوپر سے رشیا کھڑا ہوا، ادھر منگولیا، ادھر چائنا ہے اور ادھر سینٹرل ایشیا، اور سینٹرل ایشیا بھی بعد میں یو ایس ایس آر ٹوٹا ہے وہ افغان وار کی وجہ سے، تو اس کے ساتھ ہی بیسیکلی وہ مطلب یو ایس وہ اپنی سینٹرل ریپبلک بنے ہیں، مگر اس کے علاوہ تو وہ یو ایس ایس آر کے ساتھ ہی کھڑے تھے، تو ان کی فارن پالیسی پہ ہی ڈیپینڈنٹ تھے۔ پاکستان بھی اسی طرح سے تھا، تو پاکستان کو بھی جب انہوں نے ڈیمارکیٹ کیا تو آپ دیکھ لیں کہ انڈیا کو کس طرح سے سامنے رکھا ہے اور اس کے اندر انہوں نے بنگلہ دیش ڈال دیا اور بنگلہ دیش کے ساتھ انہوں نے پاکستان کھڑا کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ دونوں ملک رائیول ہے اور پاکستان کا پی ایم انڈیا کی فورن پالیسی کو اپریشیٹ کر رہا ہے، اس پر کیا کہیں گے آپ؟
बिल्कुल अच्छी बात है, करना चाहिए, क्योंकि अब देखें ना इंडिया के साथ कितने अच्छे ताल्लुकात हैं फॉरेन कंट्रीज़ के, अमेरिका के देख लें और भी दूसरी कंट्रीज़ हैं जो उनके भी देखें, तो हमें भी इसी तरह चाहिए कि अपने जो है ना मुल्क के हालात को बेहतर करने के लिए अप्रिशिएट करें और जो है ना फॉरेन कंट्रीज़ के साथ हम भी अच्छे ताल्लुकात बनाएं। इमरान खान की स्टेटमेंट से एग्री करते हैं? जी बिल्कुल एग्री करते हैं। पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी आप उसको किस तरह से देखते हैं? हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या इतनी अच्छी है कि हम लोग एक अच्छा रिलेशनशिप कायम कर सकते हैं हमारी स्टेट्स के साथ, डिफरेंट स्टेट्स के साथ, ताकि हमारी ट्रेड ऑब्वियसली डिपेंड कर रही होती है, तो आपको क्या लगता है क्या हमारी फॉरेन पॉलिसी ऐसी है? देखिए, जहाँ तक मामला फॉरेन पॉलिसी का है ना, फॉरेन पॉलिसी हमारी जो है वो मैंने बताया पहले भी पार्ट में जिक्र किया थोड़ा सा, कि जो पॉलिटिशियंस हैं और जो स्टेट इंस्टीट्यूशन है वो आपस में क्योंकि उनकी एक अनबन रहती है जिसकी वजह से वो बहुत सिग्निफिकेंटली इफेक्ट करती है, ठीक है, अफेक्टेड है ऑलरेडी, तो इसको के लिए कंसेंसस डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। इमरान खान ने जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की तारीफ़ की है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आपने? उन्होंने कहा है कि इंडिया बड़े समझदारी से चलता है, उनकी फॉरेन पॉलिसी बहुत बेहतर है पाकिस्तान से और पिछले कई टाइम से बड़ी बेहतर है उनकी। सही बात है, ये तो सही कह रहा है भाई, उसका ना कोई मर रहा है या कोई दूसरा हो रहा है, हमने अमेरिके के साथ इमदाद करके भी फिर भी उन लोगों का हमारे ऊपर अटैक करा है। आपको शायद मालूम होगा, एक कबाइली इलाक़ात में, एक कबाइली इलाके से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो कोई भी ऐसा जगह, कोई भी ऐसा मस्जिद, कोई भी ऐसा घर नहीं रहा है जिधर वो अमेरिकी वालों का ड्रोन ने अटैक नहीं किया हो, जिधर बच्चे शहीद नहीं हो, जिधर मस्तूरात औरत शहीद नहीं हुए, जिधर लोग शहीद नहीं हुए। उसको वो ज्योग्राफी होगी, ये दूसरी चीज ज्योग्राफी है। तीसरी है कि आपकी इकोनॉमी, आप कितने मतलब हाउ इंडिपेंडेंट इकोनॉमिकली यू आर, ठीक है, तो उसके अंदर आपने देखना होता है। तो इकोनॉमी, क्योंकि उन्होंने एक ग्लोबल हेजमनी क्रिएट करने के लिए वर्ल्ड वार 1 और 2 या लीग ऑफ नेशन पहले बनी और उसके बाद फिर यूनाइटेड नेशन बन गई, उसका एक कलेक्टिव सिक्योरिटी का एक ऑप्शन था, वो ये था कि उन्होंने ये किया कि जो ग्लोबल हेजमनी होगी वो हमारे पास रहेगी। आप आज भी एक चीज़ को देखते हैं कि एक वर्ड या एक सेंटेंस बयान किया जाता है कि वर्ल्ड इज़ अ ग्लोबल विलेज। एससीओ की मीटिंग अटेंड करने से एक दिन पहले आपने देखा होगा कि उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं या उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है, उनकी तरफ से ऑफिशियल एक स्टेटमेंट दी गई थी कनाडा के लिए। तो उन्होंने यही कहा था कि जो कनाडा और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है उसके अंदर न्यूटन का जो लॉ है वो इसके ऊपर अप्लाई होगा, न्यूटन लॉ ऑफ पॉलिटिक्स अप्लाई हो जाएगा, जिसका मतलब है कि जैसा एक्शन वैसा रिएक्शन। यहाँ से ही आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि वो कितना बड़ा हाथी है और एशिया का कितना बड़ा पावरफुल कंट्री है इस टाइम। जैसे अगर हम अपने पड़ोसी इंडिया में केस देखें, इंडिया जो है वो ब्रिक्स फोरम के अंदर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अब साउथ अमेरिका एज जो कॉन्टिनेंट है वहाँ और ऑस्ट्रेलिया के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात बिल्ड कर रहे हैं, जिसको जो पाकिस्तान को भी चाहिए कि न्यू कंट्रीज़ के साथ, और न्यू कंट्रीज़ तो खैर पुरानी ही हैं, लेकिन एक न्यू इसको पावर देकर फॉरेन पॉलिसी को मज़ीद बेहतर किया जाना चाहिए। जो अब पाकिस्तान के मुकाबले में इंडिया का जो पॉलिसी वाकई वो सही है, क्योंकि उन लोगों का लोग तो उसका जो पॉपुलेशन है, जो उसके लोग हैं, वो अमन महसूस कर रहा है। हमारा तो अमेरिका के साथ हेल्प करके भी फिर भी हम लोग नुकसान में हैं। तो वो ये क्यों नहीं कहते कि वर्ल्ड इज़ अ ग्लोबल सिटी या वर्ल्ड इज़ अ ग्लोबल वर्ल्ड? तो ग्लोबल विलेज इसलिए कहता है कि आप नंबरदारी भी निज़ाम वाला आपने सिस्टम देखा होगा कि गांव में भी आज भी नंबरदार एक ही बैठा होता है, बाकी सारे उसके सबॉर्डिनेट या मतहत ही होते हैं। तो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में भी इस तरह से ही है कि रिलीजन जब पैदा हुआ तो उसके अंदर अफगान वार पैदा होगी, तो उसके अंदर फिर बाद में ये हमारे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप आए जिन्होंने ये हमारे रिलीजन का नेगेटिव इम्पैक्ट पैदा कर दिया। दूसरे नंबर पर हमारी जोग्राफी थी तो वो ऑलरेडी उस शक्ल्स के दौरान थी। तीसरे नंबर पर इकॉनमी थी तो वो वर्ल्ड बैंक और IMF के अंडर आ गई, ठीक है। और जो हमारा आइन बना, आइन हमेशा एक मुकद्दस दस्तावेज़ात के तौर पे इस्तेमाल होता है कि जमहूरी मुल्क के अंदर। इमरान खान ने अपनी रिसेंट स्पीच में जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी को अप्रिशिएट किया है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने ठीक है अप्रिशिएट किया आई थिंक, क्योंकि हमें तमाम ममालिक के साथ जो है वो दोस्ती रखनी चाहिए और जो एक बैनुल-अक़वामी जो इंटरनेशनल पॉलिसीज़ के तहत ही चलना चाहिए, उसी से जो है हर मुल्क में जो है तरक्की आती है, किसी के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए हमें। तो पाकिस्तान और इंडिया राइवल है, पाकिस्तानी PM इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को अप्रिशिएट कर रहा है, आपको क्या लगता है ये ठीक है? क्या कहेंगे स्टेटमेंट? ठीक है, हमें उस तरह रेवलरी नहीं देखनी चाहिए, एक मतलब अच्छे काम पे जो है अप्रिशिएट करना चाहिए। सर, आपने इंडिया का जिक्र किया, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी और स्पेशली इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर के बारे में बड़ी बातें सुनने को मिलती हैं और लोग जो है बड़ा उनको अप्रिशिएट भी करते हैं और उनको इंस्पायर भी होते नजर आते हैं। इवन UAE के IT मिनिस्टर की तरफ से भी कहा जा रहा था कि मुझे बड़ा इंप्रेस करते हैं वो। तो S जयशंकर की हम बात कर रहे हैं, तो आपके ख्याल में उनकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो कैसी है और आप इंडिया की फॉरेन पॉलिसी और उनके फॉरेन मिनिस्टर को कैसे देखते हैं? देखिए, जो जहाँ तक जयशंकर साहब की बात है, जयशंकर साहब एक हैज़ प्रूव्ड हिमसेल्फ क्वाइट अ स्टेट्समैन ओवर द ईयर्स।
सबसे पहले ना इसके अंदर मैं एक आपको मज़े की बात ये बताऊंगा कि दो चीज़ें हल हो जाए ना, तो फॉरेन पॉलिसी भी हल हो जाएगी, तो शायद रियासत के मसाइल भी हल हो जाए। एक तो सियासी इस्तेकाम आ जाए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाए, और हमारे जैसे स्टूडेंट जो हैं इनके अंदर इकोनॉमिक इस्तेकाम यानी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ जाए। ये माँ बाप पे डिपेंडेंट है, और हमारी जो रियासतें हैं वो ग्लोबल पावर के डिपेंडेंट है, तो दोनों ही एक तरह से ना तकी खा रहे हैं। इंडिपेंडेंसी आनी चाहिए, इंडिपेंडेंसी या डिसीजन मेकिंग पावर आए, वो आपकी इकोनॉमी और मुख्तलिफ चीज़ों के साथ आती है। ना तो आप स्किल्ड लेबर पैदा कर रहे हैं, ना उस तरह से अच्छी एजुकेशन मिल रही है, ना उस तरह से मेंटल एज वेल एज पब्लिक हेल्थ पे काम उस तरह से हो रहा है। ठीक है, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी आपको लगता है कि वो न्यूट्रल है और वो सबके साथ बना के रखते हैं? बिल्कुल वो बना के रखते हैं। उनकी एक मतलब वो दिमाग से चलते हैं, किसी के साथ मतलब दुश्मनी नहीं चाहिए, अच्छी तरह चलना चाहिए, दोस्त बना के चलना चाहिए। इसी में अपने मुल्क को देखना चाहिए, अवाम को, जिसमें अवाम का फ़ायदा होगा। अच्छा जी। तो इंडियन गवर्नमेंट आपके ख्याल में अपनी अवाम का फ़ायदा देखती है और न्यूट्रल रहती है ताकि उनकी जनता का, उनके अवाम का फ़ायदा हो? हाँ जी, बिल्कुल ऐसी है। तो आप कहना चाह रहे हैं कि जो पाकिस्तान की पिछली हुकूमतें थी उन्होंने पाकिस्तानी कौम के साथ ज़्यादती की है, न्यूट्रल फॉरेन पॉलिसी ना रखे? इस बारे में नो कमेंट्स। इंडिया में क्योंकि वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लीडिंग टू इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, लीडिंग टू स्टेबल गवर्नमेंट्स एंड कांग्रेस एंड द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट हैज़ लेड टू अ स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी। हमारे यहाँ पे केस ये है कि पाकिस्तान में हमारी क्योंकि गवर्नमेंट्स वीक होती हैं, फॉरेन मिनिस्टर्स का एक डिफरेंट स्टाइल होता है, तो हमारे यहाँ पे फॉरेन पॉलिसी जो है वो उस तरह से डेवलप हो नहीं पाई। कैसे बना के रखे? सबके साथ सब, जैसे इंडिया ने बना के रखी हुई है। हाँ जी, इंडिया ने बना के रखी है, इसमें उनका भी फ़ायदा है और आगे दूसरों का भी फ़ायदा है। ऐसे ही हमें भी बना के रखना चाहिए जाके, ताकि हमारा भी फ़ायदा और उनकी कंट्रीज़ का भी फ़ायदा हो। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के लिए इंडियन ऑडियंस के लिए कोई पैगाम दें? इसका पैगाम देंगे हम कि अमन बना के रखें, कश्मीरियों के साथ थोड़ा सा जुल्म कम कर देंगे ना, तो उनके मुल्क में भी अमन रहेगा और हमारे मुल्क में भी रहेगा। अच्छा, आप क्या कहेंगे? मैं भी यही कहूँगी थोड़ा सा मुझे बता कि कश्मीरियों के साथ जो जुल्म और ज्यादती हो रही है उसे ख़त्म करें और अमन पैदा करें। कोई भी प्राइम मिनिस्टर आता है तो उसके पीछे एक नेवी का बंदा या एक आर्मी का बंदा पीछे बैठा होता है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। उन्होंने डेमोक्रेटिक स्पिरिट को सामने ले। दूसरी जो हमारा आइन बना वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे बना, मगर उसको सही मानों में कभी भी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को इस्तेमाल ही नहीं किया गया। कभी किया गया तो इस्लाम को अपने मकासद पे ही किया गया, जिसकी वजह से एक्सट्रीमिज्म, टेररिज्म, अफगान वार ऑन टेररिज्म और मुख्तलिफ चीज़ें इस छोटी सी रियासत ने क्या कुछ नहीं किया। अब इस बात को जानें कि आज तक 9/11 के बाद हमने कोई एक भी डायरेक्ट जंग नहीं लड़ी और हमने अपना 80,000 बंदा मरवा लिया है। इंडिया कहता है कश्मीर में कोई ज्यादती नहीं हो रही, आप क्या कहेंगे? वो गलत बात है, वो झूठ है वो, लेकिन ये बात सच नहीं है। सच यही है कि वो कश्मीरियों के साथ बहुत ज़्यादा जुल्म करते हैं। ये बात गलत है कि वो कहते हैं कि हमने वहाँ पे अमन बनाया हुआ है या उनके साथ अच्छा सलूक करते हैं। ये बात बिल्कुल गलत और झूठ है। उनको चाहिए कि उनके साथ भी ऐसे ही सलूक किया जाए जैसे वो अपनी कंट्री में रहते हैं, उनके बारे में भी सोचा जाए, उनका भी ख्याल किया जाए, उन पर ये जुल्म और ये सब कुछ खत्म किया जाए, उनको अपने कर दें, उनको आज़ादी दे दें। आप दोनों चाहती है कि कश्मीर को इंडिपेंडेंट कर दिया जाए? जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि वो भी मुसलमान है, वो भी हमारी तरह इंसान है ना। वो अगर उनको पाकिस्तान के साथ करने में मसला है तो फिर उनको अलग कर दें। जो स्ट्रेट कनाडा को थ्रेट कर रहा है, देखें इसके अंदर गलती कनाडा की भी है। उन्होंने जो उनको इल्जाम लगाए हैं उनके ऊपर किलिंग से रिलेटेड, उसके प्रूफ दें। हाँ। या तो आप किसी बंदे पे इल्जाम नहीं लगा रहे हो, आप एक कंट्री पे, वो भी इंडिया पे इल्जाम लगा रहे हो। हाँ। और आप इल्जाम लगा के प्रूफ भी नहीं दे रहे। तो इसके अंदर इंडिया ऑटोमेटिकली बाजी ले जाएगा। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी उनका ये है कि वो अमेरिका के साथ अब देख ले कितने अच्छे ताल्लुकात हैं उनके। अमेरिका हर फोरम पे उनके साथ खड़ा हुआ है, तो इसीलिए मैं तो यही अप्रिशिएट करूँगा उनको, क्योंकि उन्होंने अपने मुल्क के लिए हर चीज़ को कह लेना उनके साथ अच्छे हैं, और वो भी कंट्रीज़ जो है ना अपने एक मुल्क के साथ उनको करते हैं। अमेरिका उनका दोस्त है, अमेरिका ने उनको मना किया कि आपने रशिया के साथ ट्रेड नहीं करनी, उन्होंने फिर भी रशिया के साथ ट्रेड की, मतलब रशिया के साथ भी बना के रखी जो पाकिस्तान का दोस्त है। तो इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल अच्छी बात है। देखें ना, वो अपनी कंट्री को तो नहीं ना नुकसान पहुंचाना चाहेंगे, वो तो चाहेंगे कि हम सबके साथ बना के रखें जिससे उन्हें फ़ायदा होगा, कि ना कि दूसरी कंट्रीज़ को। तो इसीलिए वो अपनी कंट्री के बेहतरी के लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो अच्छी बात है ये।